सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले समझते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शंस का मतलब क्या है। ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शंस वो वाले फंक्शंस होते हैं जिसमें एक्स और वाई जो है ना, वो डायरेक्टली एक इक्वेशन के थ्रू रिलेटेड नहीं होते। एक्स और वाई दोनों किसी तीसरे वेरिएबल के थ्रू रिलेटेड होते हैं। जैसे मैं आपको कहूं y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसमें x और y दोनों आपस में एक ही इक्वेशन के थ्रू रिलेटेड है। सो दिस इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। और इफ आई से xy इज इक्वल टू cos y, here also x and y both are related to each other with the help of one equation. So this is called implicit function. ठीक है, अब देखो, if I say x is dependent on a third variable theta and y is also dependent on a third variable theta, that means x and y both are related to each other but not directly with the help of one equation. They are related to each other with the help of theta. So this type of function where x and y both are related to each other but not directly with the help of a third variable are known as parametric functions. For example, if I say y is equal to sine theta and x is equal to cos theta, so y is dependent on theta and x is also dependent on theta. Therefore, this function is called as a parametric function. So we are going to learn the derivative of such type of functions which are known as parametric functions. So let us try to understand this with the help of an example. Let y is equal to cos theta and x is equal to sine theta. Here you can see that y and x are not directly related to each other. They are related to each other with the help of the variable theta. And this third variable on which the x and y are dependent is known as parameter. Okay? अब यहां पर भी हमको पूछा जाएगा फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx. सो वो कैसे पता लगाएंगे वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम ये जो y वाली इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर थीटा, एंड ये जो x वाली इक्वेशन है इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर थीटा। जैसे if I say this is y and I want to know dy by d theta, this will be equal to minus of sine theta, and this is x, I want to know dx by d theta, so this will be equal to cos theta. Now once we have evaluated dy by d theta and dx by d theta, हमको पता लगाना है dy by dx। वो कैसे पता लगाएंगे? इन दोनों को डिवाइड करके। दैट मीन्स dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta, which will be equal to dy by d theta की जगह देखिए आप लोग माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा, एंड dx by d थीटा की जगह आप लोग देखिए क्या है, cos थीटा, so you get cos theta. Ultimately you can simplify it to write minus of tan theta. So this is dy by dx for the parametric functions where the parameter is theta. अब हम लोग आपकी एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चंस लेते हैं। सो टेक आउट योर एक्सरसाइज 5.6
जिसमें आपको बहुत सारे पैरामेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं और उनमें आपको सब केसेस में आपको dy बाई dx पता लगाना है। सो देखते हैं एक्सरसाइज 5.6 के कुछ क्वेश्चंस। सो लेट अस टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 5.6 और क्वेश्चन नंबर 1 है। सो यहाँ पर x और y दोनों जो है वो थर्ड वेरिएबल t के ऊपर डिपेंडेंट है। सो लेट अस फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ x with respect to t, that will be equal to 4at, and derivative of y with respect to t, that will be 4at cube। और अब हमको चाहिए dy by dx which will be equal to dy by dt upon dx by dt, which is equal to 4at cube upon 4at, जो आपको मिल जाएगा t स्क्वायर। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 2 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर x है a cos थीटा और y है b cos थीटा। हमको चाहिए dy बाई dx। तो सबसे पहले x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करें और y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करें और उसके बाद में दोनों को डिवाइड कर देंगे। सो लेट अस फाइंड आउट dx by d theta will be equal to minus of a sin theta and dy by d theta will be equal to minus of b sin theta। और हमको चाहिए dy by dx which is equal to minus of b sin theta upon minus of a sin theta। So sin theta से sin theta कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यू गेट b अपॉन a। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। x इज इक्वल टू साइन t एंड y इज इक्वल टू cos 2t। सो लेट अस फाइंड आउट dy बाई dx। सो सबसे पहले देखिए dx बाई dt इज इक्वल टू साइन t का डेरिवेटिव cos t एंड dy by dt cos 2t का डेरिवेटिव माइनस 2 sin 2t। अब हमको क्या चाहिए dy by dx। सो लेट अस डिवाइड dy by dx के लिए dy by dt which is minus of sin 2t upon dx by dt which is cos t। अब ये जो sin 2t है इसको आप समझिए सभी लोग, sin 2 थीटा हम लोग जानते हैं इट इज 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। सो इसको यूज करके हम sin 2t को लिख सकते हैं 2 टाइम्स sin t इंटू cos t अपॉन cos t तो है ही है। तो यहां से क्या होगा cos t कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद माइनस ऑफ 4 sin t। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सेज x इज इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू 4 बाई t। सबसे पहले dx बाई dt, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t इज dx बाई dt एंड 4t का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 एंड dy बाई dt विल बी माइनस 4 अपॉन t स्क्वायर। सो हमें पता लगाना है dy बाई dx which will be equal to minus 4 upon t square upon 4। so you are left with minus 1 upon t square। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 says x is equal to cos theta minus cos 2 theta and y is equal to sin theta minus sin 2 theta। फिर से वही हमको dy by dx निकालना है। so let us find out dx by d theta and dy by d theta। dx by d theta पता लगाने के लिए cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin थीटा एंड cos 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस ऑफ 2 sin 2 थीटा। सो थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो माइनस ऑफ sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा, ये आ गया हमारा dx by d थीटा। Now let us find out dy by
डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा के लिए साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 टाइम्स कॉस 2 थीटा। तो ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी थीटा। अब dy बाई dx के लिए dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। सो dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां से dy बाई डी थीटा लिखो cos थीटा माइनस ऑफ 2 टाइम्स cos 2 थीटा अपॉन यहां से dx बाई डी थीटा लिखो माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। दिस इज dy बाई dx। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 6 इज x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस cos थीटा एंड वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। सो देखो dx बाई डी थीटा विल बी, a इज कांस्टेंट, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा एंड dy बाई डी थीटा पता लगाने के लिए a इज कांस्टेंट, 1 का डेरिवेटिव 0, cos का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन थीटा। अब हमको दोनों को डिवाइड करके dy बाई dx पता लगाना है। सो dy बाई dx विल बी a इंटू माइनस ऑफ साइन थीटा, जो कि यहां से आया dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा इज a इंटू 1 माइनस cos थीटा। अब देखो a से a तो कैंसिल हो गए और थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहां देखिए आप लोग, साइन थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस cos थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब साइन थीटा की जगह पे हम लगा देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस cos थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा, ये माइनस देखो एज इट इज आ गया एंड साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 और 1 माइनस cos थीटा की जगह पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये 2 से 2 तो कैंसिल और एक साइन कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद cot थीटा बाई 2। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा लेंदी है तो इसको ध्यान से समझना, एक एक स्टेप में समझा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। सो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू साइन क्यूब t अपॉन अंडर रूट ऑफ cos 2t एंड y इज इक्वल टू cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट ऑफ cos 2t। पहले dx बाई dt, उसके बाद में dy बाई dt और फिर दोनों को डिवाइड करके dy बाई dx। तो सबसे पहले हम लोग पता लगाते हैं dx बाई dt। dx बाई dt इज इक्वल टू u अपॉन v है, तो आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ cos 2t का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू cos 2t। नाउ डिनोमिनेटर which is under root of cos 2t into derivative of numerator which is 3 times sin square t into derivative of sin t is cos t। तो ये तो हुआ हमारा डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस साइन क्यूब t into derivative of under root of cos 2t which will be equal to 1 upon 2 root cos 2t into derivative of cos 2t is minus of 2 sin 2t। अब क्या करना होगा, ये देखो 2 से 2 तो कैंसिल, ये लो भी ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर के हो जाएंगे प्लस, और न्यूमरेटर में आप लोग ले लेंगे एलसीएम। सो हमको मिलेगा cos 2t इंटू 3 टाइम्स
साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ये दोनों मिला करके प्लस हो गए थे, दिस इज साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t होल डिवाइडेड बाई कॉस 2t, और ये जो एलसीएम आया था अंडर रूट ऑफ कॉस 2t वो भी साथ में इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज dx बाई dt। तो सबने लिख लिया dx बाई dt। मैं इसको सेपरेटली लिखने जा रहा हूं इधर साइड में, और इधर हम बोर्ड इरेज करके dy बाई dt पता लगाने वाले। तो ये हमने देखो dx बाई dt अलग से लिख दिया। अब हम पता लगाने जा रहे हैं dy बाई dt। लेट अस स्टार्ट। dy by dt will be equal to, again we have to apply u upon v, so denominator का square which is cos 2t under root of cos 2t। अब cos क्यूब t का डेरिवेटिव, cos क्यूब t का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 टाइम्स cos स्क्वायर t इंटू cos t का डेरिवेटिव which is minus of sin t, then minus cos cube t as it is into derivative of under root of cos 2t which is 1 upon 2 root cos 2t into derivative of cos 2t is minus 2 sin 2t। 2 से 2 आप कैंसिल कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल, ये वाला माइनस साइन इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, और अंडर रूट ऑफ cos 2t को न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो। तो मिलेगा क्या आपको, देखो ये वाला अंडर रूट cos 2t, ये वाला अंडर रूट cos 2t मल्टीप्लाई होकर के cos 2t बन जाएंगे इंटू 3 टाइम्स cos स्क्वायर t इंटू माइनस ऑफ साइन t, ये प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t होल डिवाइडेड बाई ये वाला cos 2t मल्टीप्लाइड बाई ये जो आपका एलसीएम आया था वो बन जाएगा cos ऑफ 2t। सो दिस इज dy बाई dt। ये जो हमारा dy बाई dt आया इसको भी मैं यहाँ पे सेपरेटली लिखने जा रहा हूँ, और फिर बोर्ड इरेज करके हमको dy बाई dt अपॉन dx बाई dt करके दोनों को डिवाइड करके फिर सिंप्लीफाई करना होगा टू फाइंड dy बाई dx। तो देखिए हमने dy बाई dt पता लगा लिया और dx बाई dt पता लगा लिया। अब dy बाई dx पता लगाने के लिए dy बाई dt अपॉन dx बाई dt करना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू डिवाइड इट एंड सिंप्लीफाई इट टू गेट द फाइनल रिजल्ट ऑफ dy बाई dx। तो अब देखिए dy बाई dx पता लगाने के लिए हमने क्या किया, यहां से dy बाई dt की वैल्यू रख दी न्यूमरेटर में, और dx बाई dt की वैल्यू जो थी वो हमने रख दी डिनोमिनेटर में। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग देखो ये जो cos 2t और अंडर रूट ऑफ cos 2t डिनोमिनेटर में है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो कैंसिल कर दो इनको। अब क्या बचा, अब हमारे पास न्यूमरेटर में ये एक्सप्रेशन बचा और डिनोमिनेटर में ये एक्सप्रेशन बचा जिसको हमको सिंप्लीफाई करना है। So after cancelling the denominators of both dy by dt and dx by dt हमको ये मिल गया। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना। सबसे पहला स्टेप देखो, ये दोनों जो sin 2t है इन दोनों की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 sin t cos t, 2 sin t cos t। So let us write that। तो हमने sin 2t की जगह 2 sin t cos t न्यूमरेटर में लिखा और sin 2t की जगह 2 sin t cos t डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब देखो क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में से आप एक साइन और एक कॉस कॉमन निकाल लो और डिनोमिनेटर में से भी एक साइन और एक कॉस कॉमन निकाल लो ताकि वो दोनों कैंसिल हो जाए। अब देखिए न्यूमरेटर में से हमने साइन टी और कॉस टी कॉमन निकाल लिया, सिमिलरली डिनोमिनेटर में से भी साइन टी और कॉस टी कॉमन निकाल लिया। ये कॉमन क्यों निकाला, ताकि हम इनको कैंसिल कर दें और एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिल जाए हमको। तो अब क्या करें, साइन टी से साइन टी कैंसिल, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल। अब हमको एडजस्ट करना है ये वाला
cos 2t एज वेल एज ये वाला cos 2t। हम जानते हैं cos 2t कैन बी रिटन एज 2 cos square t minus 1 as well as cos 2t can be written as 1 minus 2 sin square t। अब क्योंकि न्यूमरेटर में आप देखिए ध्यान से cos 2t के अलावा बाकी टर्म्स cos के हैं, इसलिए हम cos 2t की जगह पर cos का एक्सप्रेशन रख देंगे। एंड डिनोमिनेटर में cos 2t के अलावा sin के एक्सप्रेशंस हैं, इसलिए हम डिनोमिनेटर में इस cos 2t की जगह पर sin का एक्सप्रेशन रख देंगे। ये देखिए आप लोग, ये जो न्यूमरेटर में cos 2t है इसकी जगह हमने लिखा 2 cos square t minus 1, और ये जो डिनोमिनेटर में cos 2t है इसकी जगह हमने लिखा 1 minus 2 sin square t। ठीक है, अब क्या करें, ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको खोल देते हैं, इनको खोल के और फिर सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इन ब्रैकेट्स को खोल दिया। सो वी गॉट माइनस ऑफ 6 cos क्यूब t प्लस 3 cos t एंड प्लस 2 cos क्यूब t, एंड डिनोमिनेटर इज 3 sin t माइनस ऑफ 6 sin क्यूब t प्लस ऑफ 2 sin क्यूब t। अब क्या करें, ये जो लाइक टर्म्स है ना, इन लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखो, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमको मिला 3 times cos t माइनस ऑफ 4 cos क्यूब t एंड डिनोमिनेटर इज 3 times sin t माइनस ऑफ 4 sin क्यूब t। अब आप न्यूमरेटर को ठीक से देखो तो आपको cos 3 थीटा याद आना चाहिए, और अगर आप डिनोमिनेटर को ठीक से देखो तो आपको sin 3 थीटा याद आना चाहिए। So after applying these results, we get numerator as minus of cos 3t and denominator as sin 3t. So ultimately क्या मिलता है, minus of cot 3t. This is dy by dx for क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 says x is equal to a into cos t plus log of tan t by 2 and y is equal to a times sin t। हमको वही पता लगाना है, dy by dx। so dx by dt सबसे पहले देखते हैं। a is constant, ये a लिख दिया हमने। cos t का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ऑफ sin t। अब देखिए log of fx, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 upon fx, that is 1 upon tan t by 2 into derivative of tan fx, which is sec square t by 2 into derivative of t by 2, which is 1 by 2। तो ये तो हुआ dx by dt, बट इसको हमको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर तो है sin t, और इन टर्म्स में जो एंगल है वो आपके पास है t by 2, सो वी हैव टू सिंप्लीफाई इट फर्दर। सो देखिए a एज इट इज माइनस ऑफ sin t एज इट इज, tan t by 2 को हम लिख सकते हैं sin t by 2 अपॉन cos t by 2, एंड sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर t by 2, और 1 by 2 एज इट इज। अब देखिए cos t by 2 और cos t by 2 कैंसिल हो गए, यू आर लेफ्ट विद a इंटू माइनस ऑफ sin t प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स sin t by 2 इंटू cos t by 2। अब आप डिनोमिनेटर के इस पोर्शन पे फोकस करें। वी नो दैट sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। सो उस वजह से अगर आपको 2 sin t by 2 और cos t by 2 मिले तो आप इसको लिख सकते हैं sin t। अब हम 2 times sin t by 2 और cos t by 2 की जगह लिख रहे हैं sin t। सो a as it is minus of sin t as it is प्लस 1 अपॉन sin t। अब इस एक्सप्रेशन में आप लोग क्या करें,
एलसीएम ले लें। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन टी एज एलसीएम एंड माइनस ऑफ साइन स्क्वायर टी प्लस 1 which is a into cos square t upon sin t. This is dx by dt. तो ये हमारा dx by dt आ गया। अब देखिए y क्या है, y is a times sin t, तो यहां से हम पता लगा लेंगे dy by dt. So dy by dt is equal to a times cos t. हमको dy by dt मिल गया, हमको dx by dt मिल गया। पता क्या लगाना है, dy by dx. So divide dy by dt with dx by dt, तो मिल जाएगा dy by dx. Let us find out dy by dx, which is equal to dy by dt, which is a into cos t upon dx by dt, which is a into cos square t upon sin t. आप a से a कैंसिल कर सकते हैं, एक cos से एक cos कैंसिल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा sin t upon cos t, which is tan t. So finally dy by dx जो मिला, that is tan t. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Question number 9 says x is equal to a sec theta and y is equal to b tan theta. So dx by d theta will be a times sec theta into tan theta, and dy by d theta will be b times sec square theta. So dy by dx पता लगाने के लिए b टाइम्स sec स्क्वायर थीटा, जो कि dy by d थीटा है, अपॉन a टाइम्स sec थीटा इंटू tan थीटा. तो एक sec थीटा कैंसिल कर दो, यू आर लेफ्ट विद b टाइम्स sec थीटा अपॉन a इंटू tan थीटा. अब sec थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन cos थीटा, एंड tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. सो फिर से देखो, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट विद b अपॉन a साइन थीटा, which can also be written as b upon a into cosec theta. Now let us come to question number 10. Question number 10 says x is equal to a into cos theta plus theta times sin theta, and y is equal to a into sin theta minus theta times cos theta. Let us find out dx by d theta and dy by d theta. dx by d theta आप लोग देखें ध्यान से, a into cos theta का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin theta, प्लस यहाँ पर थीटा और sin थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो हमको क्या करना पड़ेगा, u into v, that is प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. सो थीटा into डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा into डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज 1. सो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, ये माइनस का साइन थीटा, ये प्लस का साइन थीटा, दोनों कैंसिल हो गए, यू आर लेफ्ट विद a into थीटा into cos थीटा. ये dx by d थीटा आ गया हमारा. नाउ लेट अस फाइंड dy by d थीटा. dy by d थीटा इज इक्वल टू a into साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा माइनस ऑफ अगेन थीटा इंटू cos थीटा की जगह पे हमको u इंटू v लगाना पड़ेगा. सो थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज 1. अब इस माइनस की वजह से इस ब्रैकेट को पहले खोलो, a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ऑफ cos थीटा. अब ये पॉजिटिव cos थीटा और नेगेटिव cos थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे,
and you are left with a into theta into sin theta. ये आ गया dy by d theta. अब हमको पता क्या लगाना है, हमको पता लगाना है dy by dx, which will be dy by d theta, which is a theta sin theta, upon dx by d theta, which is a theta cos theta. So a से a कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, sin theta upon cos theta is tan theta. तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, which is question number 11. Question number 11 says x is under root of a raised to the power sin inverse t and y is under root of a raised to the power cos inverse t, and you are asked to show that dy by dx is equal to minus of y by x. So let us find out dy by dt first, then dx by dt, then we'll show that this dy by dx will be minus y upon x. So dx by dt के लिए आप लोग ध्यान से देखिए, दिस इज अंडर रूट ऑफ fx. रूट fx का डेरिवेटिव आप लोग जानते हो, 1 अपॉन 2 रूट fx into derivative of a raised to the power sin inverse t, which will be a raised to the power sin inverse t into log a into derivative of sin inverse t, which is 1 upon under root of 1 minus t square. ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, दिस इज dx by dt. अब हम लोग पता लगाने जा रहे हैं dy by dt. So dy by dt is equal to, फिर से देखो, रूट fx. So 1 upon 2 root fx a raised to the power cos inverse t into derivative of a raised to the power cos inverse t, which is a raised to the power cos inverse t into log a into derivative of cos inverse t, which is minus 1 upon under root of 1 minus t square. So ये complete हुआ derivative of y with respect to t, which is dy by dt. अब आपको पता लगाना है dy by dx. dy by dx पता लगाने के लिए आपको dy by dt upon dx by dt पता लगाना होगा. तो देखिए dy by dx पता लगाने के लिए हमने क्या किया, dy by dt को एज इट इज यहां लिखा एंड dx by dt को एज इट इज यहां पर लिख दिया. नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई इट फर्दर. तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, log a से log a कैंसिल हो गया, यहां पर एक -1 को छोड़ दो तो ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पूरे के पूरे कैंसिल हो गया. यू आर लेफ्ट विद दिस -1 हियर. अब देखो ध्यान से, बचा क्या, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a रेज्ड टू द पावर cos इनवर्स t. तो a रेज्ड टू द पावर cos इनवर्स t आप देखो विद रूट अगर है, दैट इज इक्वल टू y. तो ये जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है इसको हम लिख देंगे y. सो हमने क्या लिखा, अंडर रूट ऑफ a रेज्ड टू द पावर cos इनवर्स t एज y. अब ध्यान से देखो आगे, ये a रेज्ड टू द पावर cos इनवर्स t है बट रूट नहीं है. सो a रेज्ड टू द पावर cos इनवर्स t का रिक्वायरमेंट है, तो अगर हम स्क्वायर कर दें दोनों साइड तो ये रूट हट जाएगा. तो a रेज्ड टू द पावर cos इनवर्स t विल बी एक्चुअली इक्वल टू y स्क्वायर. तो ये हमने लिख दिया y स्क्वायर इनटू, यहां पर देखिए एक -1 बचा था तो ये हमने लिख दिया इनटू -1 अपॉन, देखो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a रेज्ड टू द पावर साइन इनवर्स t. फिर से आप ऑब्जर्व करो x पे, अंडर रूट ऑफ a रेज्ड टू द पावर साइन इनवर्स t इज इक्वल टू x. सो इसको लिख देंगे हम 1 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय a रेज्ड टू द पावर साइन इनवर्स t, which will become x स्क्वायर. सो हम इसको लिख देंगे x स्क्वायर, और ये वाले दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो चुके हैं.
तो वी आर लेफ्ट विद दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y। अब देखिए ये वाला y इस y से कैंसिल, ये वाला x इस x से कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद माइनस ऑफ y अपॉन x। सो आप देखिए यही आपको प्रूव दैट के लिए कहा गया था क्या, शो दैट dy by dx इक्वल टू माइनस y अपॉन x, और हमने प्रूव कर दिया। इज इट ओके? सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 5.6. See you everyone.